Hello everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Bhadresh Kathar and I am your math teacher. Today we are going to solving the worksheet chapter number 5 division. So let's start the lecture. Okay, so there is a worksheet chapter number 5 division. So question number 1, divide the followings. Okay, divide the followings. So there is a question number 1, 88 divided by 8. Okay, so let's start. So first of all हम उसको यहाँ पे numbers को arrange कर लेंगे. Okay, so there is a 88 and 8. Okay, 88 is a dividend and 8 is a divisor. Okay, so first step is that कि हमें 8 के टेबल में 8 अदरवाइज 8 से लेस नंबर लेना है. ओके, सो आपको पता है कि 8 वन ज़ा 8 होता है. ओके, सो यहाँ पे बहुत ही इजी सम है, इसलिए यहाँ पे 8 वन ज़ा 8. सो 8 वन ज़ा 8. Okay, and we have to do the subtraction, so there is a 0. Okay, now we have to put down the number 8. Okay, so there is a again 8, so 8 ones are 8, 8 ones are 8, and there is a 0. So is that your answer? Okay, now second one. Okay, 105 divided by 7. First of all we have to arrange the numbers. Okay, so there is a 105 and 7. Okay, so first of all हम यहाँ पे 1 डिजिट लेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, सो देर इज़ अ 1 एंड देर इज़ अ 7, सो वी कैन नॉट स्टार्ट द सम बिकॉज ऑफ जो ये नंबर है वो हमारा 7 से लेस नंबर है. हमारा रूल है कि ये जो नंबर है वो 7 अदरवाइज 7 से ग्रेटर होना चाहिए. ओके, बट यहाँ पे लेस नंबर है. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू डू द 2 नंबर. ओके, यहाँ पे हम 2 डिजिट का यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स यूज़ द 2 नंबर्स. सो 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14. जो 14 है वो 10 से ज़्यादा है, सो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 7 वन ज़ा 7. सो 7 वन ज़ा 7. नाउ 10 minus 7, 10 minus 7 is equal to 3. So there is a 3 and we have to put down the number 5. Okay, now there is a 35. Okay, so now 7 के टेबल में 35, अदरवाइज 35 से लेस नंबर, so we have to check it. Okay, so 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, so there is a 35. 7 5 ज़ा 35, so 7 5 ज़ा 35, and there is a subtraction 0 0, so there is a reminder 0 0. Got it? So there is a 15 quotient and 7 is a divisor, 105 is a dividend. Okay, and 0 0 remainder. Okay, now next question, 144 divided by 9. Okay, so first of all we have to arrange the numbers. Okay, ओके, सो हमने यहाँ पे नंबर्स को अरेंज कर लिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डिजिट, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ देर इज़ अ 1 एंड देर इज़ अ 9. ओके, सो वी हैव टू टेक द 2 नंबर्स, 14. सो नाउ 9 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, सो 18 जो है वो 14 से ज़्यादा है. ओके, सो वी आर यूजिंग 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9. Okay, now subtraction 14 minus 9, 14 minus 9 is equal to 5, so there is a 5 and we have to bring down the number 4. Okay,
नाउ 9 के टेबल में 54, अदरवाइज 54 से लेस नंबर कोई आता है, सो 9 6 54. Okay, okay, so there is a 9 6 54, so there is a 54, and there is a subtraction 0 0. Got it? So there is a quotient 16. Okay, now next question, 198 divided by 9. First of all, we have to arrange the number 198, and there is a 9. Okay, first of all, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27. ओके, तो 27 है वो 19 से ज़्यादा है. ओके, सो हम क्या यूज़ करेंगे, 9 2s are 18, 9 2s are 18, 19 minus 18, 19 minus 18 is equal to 1. Okay, now we have to bring down the number 8. Okay, so there is a 8. So now 9 के टेबल में 18, 9 2s are 18, very easy. So there is a again 2, and there is a 18, and remainder is a 0 0. So there is a quotient is a 22. Okay, now question number 5, 66 divided by 3. Okay, first of all we have to arrange the number. Okay, so 66 divided by 3. First of all, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so there is a 6. Okay, so 3 2s are 6. Okay, now we have to do the subtraction. 6 minus 6 is equal to 0, and we have to bring down the number 6. Again 3 2s are 6, 3 2s are 6, and we have to do the subtraction. So there is a 0. So there is the answer 22. Quotient is a 22. Now question number 2. Divide the following using multiplication facts. Okay. Okay, so there is a 35 divided by 5. 35 divided by 5. तो ये सम हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से कैसे कर सकते हैं, तो आप 5 का टेबल बोलो और 5 के टेबल में 35 कब आता है, तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर होगा. सो 5 के टेबल में 35, सो 5 7s are 35. आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो. 5 7s are 35. सो 7 इज़ योर आंसर. ओके, 7 इज़ योर आंसर. आप जो हमारी डिवीज़न मेथड है उससे भी आप कर सकते हो. चलो एक बार हम ऐसे भी देख लेते हैं. सो देर इज़ अ 35 डिवाइडेड बाई 5. ओके, सो 5 के टेबल में 35 कब आता है, हम यहाँ पे 2 डिजिट का ही यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ देर इज़ अ 3 एंड 3 इज़ अ लेस देन 5. ओके, सो 5 7s are 35, 5 7s are 35, and now we have to do the subtraction. 35 minus 35 is equal to 0. सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे 7 है. ओके, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज़ 36 एंड डिवाइडेड बाय 6. तो 6 के टेबल में 36 कब आता है, सो 6 6 are 36. ओके, सो देर इज़ अ 6 6 are 36, and answer is 0 0, मीन्स रिमाइंडर इज अ 0 0, एंड हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे 6. ओके, सो देर इज़ अ आंसर 6. ओके, नेक्स्ट इज अ 81 डिवाइडेड बाय 9. तो आप 9 के टेबल में बोलो कि 81 कब आता है, सो 9 9s are 81, सो 9 9s are 81. देन आफ्टर 10 डिवाइडेड बाय 10. सो 10 के टेबल में 10 कब आता है, 10 1s are 10, so there is a 1. आफ्टर दैट 16 and 8. सो 8 के टेबल में 16 कब आता है, सो 8 2s are 16, सो 8 2s are 16. आफ्टर दैट 7 and 35. सो 7 के टेबल में 35 कब आता है, 7 5s are 35. ओके,
यहाँ पे भी आप देख सकते हो 35 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, 7 5 ज़ा 35. नाउ नेक्स्ट 45 डिवाइडेड बाई 5. ओके, सो 45 डिवाइडेड बाई 5, 5 के टेबल में 45 कब आता है? सो 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45. आफ्टर दैट 100 एंड 10. ओके, सो 10 के टेबल में 100 कब आता है? सो 10 10 ज़ा 100. ओके, सो 10 10 ज़ा 100. आफ्टर दैट 80 डिवाइडेड बाई 4. ओके, सो 4 के टेबल में 80 कब आता है? सो 4 के टेबल में 80 तो नहीं आता, बिकॉज ऑफ 4 10 ज़ा 40. ओके, 4 10 ज़ा 40 होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40, बट हमें यहाँ पे 80 लेना है. इट मीन्स हम यहाँ पे 10 का डबल करेंगे. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 80. ओके, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 को रख देंगे. ओके, वेरी इजी मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो देर इज़ अ 20. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ 90 डिवाइडेड बाई 9. सो 9 के टेबल में 90 कब आता है? 9 10 ज़ा 90. सो देर इज़ अ 9 10 ज़ा 90. ओके, so that is all answers. Okay, now question number 3, divide the following using short division method. Okay, हमें यहाँ पे डिवीज़न करना है, बट हमें यहाँ पे शॉर्ट डिवीज़न मेथड से करना है. आपको शॉर्ट डिवीज़न मेथड तो याद ही होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग द शॉर्ट डिवीज़न मेथड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे नंबर्स को. ओके, सो देर इज़ अ 51 एंड देर इज़ अ 3. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? 3 1 ज़ा 3, बिकॉज ऑफ देर इज़ अ 5. ओके, सो 3 1 ज़ा 3. ओके, सो 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंड कितना हुआ? 2, बिकॉज ऑफ 3 माइनस, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2. ओके, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पे 2 है. सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 21. ओके, सो नाउ 21 है हमारे पास. सो 3 के टेबल में 21 कब आता है? सो 3 7 ज़ा 21. सो 3 7 ज़ा 21. ओके, सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कितना है? 17. तो ये है हमारी शॉर्ट डिवीज़न मेथड. ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन इज़ अ 17 एंड रिमाइंडर इज़ अ 0. ओके, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्वेश्चन हमारा 17 है एंड रिमाइंडर इज़ अ 0. Okay, now question number 2. There is a 6215 divided by 5. Okay, so first of all हम यहाँ पे 1 डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देर इज़ अ 6. ओके, सो 5 1 ज़ा 5. ओके, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ से 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड हमारा जो सेकेंड नंबर है वो यहाँ पे 2 है. सो यहाँ पे हो गया 12. ओके, सिर्फ याद रखने के लिए मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ. ओके, सो अब 5 के टेबल में 12 कब आता है? सो 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, बट 10 ज़रूर आता है. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो 5 2 ज़ा 10. सो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 2. ओके, सो यहाँ पे अगेन 2 एंड ये हमारा 1 बाजू में. ओके, सो देर इज़ अ 21. ओके, नाउ 5 के टेबल में 21, अदरवाइज 21 से लेस नंबर. यस, तो देर इज़ अ 20. 5 4 ज़ा 20. सो 5 4 ज़ा 20. सो यहाँ पे 20 माइनस 21 इज इक्वल टू 1. ओके, सो यहाँ पे 1 है हमारा रिमाइंड, एंड ये हमारा जो 5 है
वो यहाँ पे बाजू में. ओके, सो देर इज़ अ 15. नाउ 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 3 ज़ा 15. सो 5 3 ज़ा 15. ओके. Okay, so there is a quotient is a 1243 and remainder is a 0. Okay, so मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. So there is a quotient is a 1243 and remainder is a 0. Okay, now question number 3. 7217 by 9. Okay, so let's arrange the number first of all. Okay, so let's start. Okay, now there is a 9 and 7217. Okay, so first of all we are using the 2-digit number because of there is a 7 is a less than 9. Okay, so 9 के टेबल में 72 कब आता है? So 9 8 ज़ा 72. Okay, 9 8 ज़ा 72. So there is a 8 and there is a 72 minus 72 is equal to 0. तो जो हमारा रिमाइंडर है वो अभी यहाँ पे 0 हो गया है. देखो यहाँ पे 72 का हमने यूज़ कर लिया है तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया. अब हमें नेक्स्ट नंबर अगर लेना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 0. हमें पहले भी इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था. ओके, सो 9 multiply by 0 equal to 0. Okay, 9 multiply by 0 is equal to 0. Okay, now there is a 17. Okay, so 9 के टेबल में 17 कब आता है? 17 तो नहीं आता. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. so 18 जो है वो 17 से ज़्यादा है. Okay, so we are using 9 1 ज़ा 9. Okay, so there is a 9 1 ज़ा 9. Okay, so 9 minus 17. 9 minus 17. So there is a 8. Okay, so 8 जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा. Okay, so there is a 8 remainder and quotient is a 801. Okay. Okay, now next question number 4. Okay, 8888 divided by 8. Okay, so first of all हम क्या यूज़ करेंगे? 1 digit because of there is a 8 and there is also 8. so इक्वल नंबर से तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अगर लेस देन नंबर होता तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 1 ज़ा 8. ओके, so 8 minus 8 is equal to 0. Okay, so now next number is 8 1 ज़ा 8, again 1. so यहाँ पे सभी नंबर्स 8 ही है तो हम यहाँ पे सभी को 1 से डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो देर इज़ अ 1 1 एंड 1. ओके, सो लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0. ओके, सो क्वोशंट इज़ अ 1111 and quotient is a 0. Very easy. Okay, now next is question number 5. Okay, 1559 by 2. Okay, so first of all we have to arrange the number. 1559 divided by 2. Okay, so first of all we are using the 2-digit number because of there is a 1. Okay, जो 1 है वो 2 से लेस है. Okay, अगर 2 होता या फिर 2 से ज़्यादा नंबर होता तो हम यहाँ पे सम आगे कर सकते थे. बट नाउ वी हैव टू यूजिंग 2-digit नंबर्स. सो 2 के टेबल में 15 अदरवाइज 15 से लेस नंबर. ओके, सो देर इज़ अ 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16. तो 16 है वो 15 से ज़्यादा है. सो 2 7 ज़ा 14. ओके, सो नाउ देर इज़ अ 14 minus 15. 14 minus 15 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड हमारा जो नियर बाई नंबर है वो यहाँ पे 5 है. सो 1 and 5 15. ओके, सो नाउ नेक्स्ट नंबर इज़ 15. नाउ 2 के टेबल में 15 अदरवाइज 15 से लेस नंबर. सो अगेन हम यहाँ पे
2 7 ज़ा 14 यूज़ करेंगे. सो 2 7 ज़ा 14. So again 14 minus 15. 14 minus 15 is equal to 1. Okay. So now there is a last digit is 9. 1 and 9 is equal to 19. Okay. So now 2 के टेबल में 19, अदरवाइज 19 से लेस नंबर. सो देर इज अ 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20. सो 20 है वो 19 से ज़्यादा नंबर है. सो वी आर यूजिंग 2 9 ज़ा 18. सो देर इज अ 9. 2 9 ज़ा 18. नाउ 18 माइनस 19 इज इक्वल टू 1. सो देर इज अ quotient is equal to 779 and remainder is a 1. Okay, because 18 minus 19 is equal to 1. Okay, so there is answer. Now question number 2. 120 by 9. First of all we have to arrange the number. Okay, so now 9 के टेबल में 12, अदरवाइज 12 से लेस नंबर. सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. 18 जो है वो 12 से ज़्यादा है. सो वी आर यूजिंग 9 1 ज़ा 9. सो नाउ 9 माइनस 12, अदरवाइज 12 माइनस 9. सो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3. एंड जो हमारा लास्ट डिजिट है वो यहाँ पे 0 है. सो 3 and 0 is equal to 30. ओके, सो नाउ 9 के टेबल में 30 कब आता है, अदरवाइज 30 से लेस नंबर. सो 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36. सो वी आर यूजिंग द 9 3 ज़ा 27. सो देर इज अ 3. 9 3 ज़ा 27. सो 27 माइनस 3. सो 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. सो रिमाइंडर यहाँ पे कितना हुआ, 3. ओके, सो क्वोशंट इज इक्वल टू 13 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 3. ओके, सो देर इज अ 3. सो इज दैट योर आंसर. Now next question is 162 by 9. Okay, so first of all we have to arrange the numbers. 162 by 9. Okay, so first of all 9 1 ज़ा 9 and 9 2 ज़ा 18. 18 जो है वो 16 से ज़्यादा है. Okay, so we are using 9 1 ज़ा 9. Okay, so 9 minus 16. So 9 minus 16, otherwise 16 minus 9 is equal to 7. Okay, so 7 and there is a 2. 7 and 2 is equal to 72. Okay, so now 9 के टेबल में 72 कब आता है, so 9 8 ज़ा 72. 9 8 ज़ा 72. so 72 minus 72 is equal to 0. So there is a remainder is a 0. So quotient is a 18 and remainder is a 0. Okay, now next question 144 by 8. Okay, so first of all 8 के टेबल में 14, अदरवाइज 14 से लेस नंबर. Yes, so there is a 8 1 ज़ा 8 and 8 2 ज़ा 16. 16 जो है वो 14 से ज़्यादा है. So we are using 8 1 ज़ा 8. Okay, so 8 1 ज़ा 8. So 8 minus 14. 8 minus 14 is equal to 6. Okay, so there is a 4 and 6. 64. Okay, 14 minus 8 is equal to 6 and 6 and यहाँ पे 4 है, so 64. ओके, नाउ 8 के टेबल में 64 कब आता है, so 8 8 ज़ा 64. so there is a 8 8 8 ज़ा 64. okay, so quotient is a
18 and remainder is a 0. Okay, so there is answer. Now question number 9. Okay, 171 by 9. Okay, 171 by 9. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 के टेबल में 17, ओके, ये जो हम 2 डिजिट यहाँ पे यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे 9 के टेबल में 17, सो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, जो 18 है वो 17 से ज़्यादा है. ओके, सो वी आर यूजिंग 9 1 ज़ा 9. ओके, सो नाउ 9 माइनस 17. So 9 minus 17, otherwise 17 minus 9 is equal to 8 and there is a 1. Okay, so 81. 17 minus 9 is equal to 8 and there is a 1. So there is a 81. Okay, so now 9 के टेबल में 81 कब आता है? So 9 multiply by 9 is equal to 81. 9 9 is 81. So there is a 9. 9 9 is 81. So remainder is a 0. So quotient is a 19 and remainder is a 0. Okay, so there is answer. Now last question, 152 by 8. Okay, so first of all we have to arrange the number. Okay, and there is a 8. Okay, so first of all we are using 2 digit number. Okay, so 8 के टेबल में 15, अदरवाइज 15 से लेस नंबर. सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. सो इस 16 जो है वो 15 से ग्रेटर है. ओके, सो वी आर यूजिंग 8 1 ज़ा 8. ओके, सो नाउ 15 माइनस 8. So 15 minus 8 is equal to 7 and there is a 2. So there is a 72. So 8 के टेबल में 72, otherwise 72 से लेस नंबर. ओके, so there is a 8 9 ज़ा 72. 8 9 ज़ा 72. So 72 minus 72 is equal to 0. Okay, so quotient is a 19 and remainder is a 0. ओके, सो यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 5 डिवीज़न की जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. आपको अपनी वर्कशीट के अंदर ये सारा फिल करना है. ओके, और ट्राई करना है कि आप बिना देखे कर पाओ. ओके, जो मैंने यहाँ पे आंसर्स बताए हैं वो आप पहले बिना देखे करो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई एरर हो तो आप यहाँ पे देख के कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू.